2021 Chavindra. Today is not a very warm afternoon, but warm cricket. Mauli Sport, the champion of in this season, won the toss and elected bat first. Absent of Bilal Sheikh to openers, Ghiyasuddin Sheikh, who played a glorious inning in quarter final against SP Dapode, 35 runs with Sagar, is going to be Raja Gulvi, man of the series in Vadgar tournament. Raja Gulvi opened the bowling attack, and with me once more Sandesh Wakhare joined me in commentary. First semi-final, Raja Gulvi facing him Ghiyasuddin Sheikh, short third man, cover point, backward point, cover, extra cover and mid-off. Here goes Raja Gulvi. Goes to Ghiyasuddin, it's hard and should be a 6. Yes, it is. What a start from Ghiyasuddin Sheikh. Choose the half volley and clear the long off. होने की वजह से रईस बिल्डर एंड डेवलपर के 12वें खिलाड़ी भी नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 4 रन का पेनल्टी दिया है। एक ओवर की समाप्ति के बाद हम ऐड करेंगे। बट ए स्टार्ट फ्रॉम Ghiyasuddin Sheikh, सुपर स्ट्रोक, ओवर लॉन्ग ऑफ, 6 विदाउट लॉस। Raja Gulvi, man from Nimboli, facing him batsman Ghiyasuddin Sheikh, Bhiwandian AB. This time drive straight to fielder. Yes, he is out. Caught at extra cover, and this is the big blow. Ghiyasuddin tried to clear the over extra cover, but good taken, and finally Ghiyasuddin on his way. Mauli Sport 6 for the loss of 1 wicket. First over in progress. New batsman in Rock of Temgar, the captain of Mauli Sport, Shyam Chaudhary, who also played a good knock against SP Dapode, 34 runs. Second semi-final between Pioneer Sport and Jai Durga B. Another high voltage match. Raja Gulvi facing him batsman Shyam Chaudhary. Mauli Sport won the toss, selected bat first. 2 men outside the ring. Here he go. Goes to Shyam, lovely looking drive, straight to extra cover. Yes. Umpire raising his finger, direct hit there, and finally Shyam is out for duck. What an excellent throw, and what a shaky start from Mauli Sport, and what a performance from Rईस Builder. Lovely looking drive, one bounce to fielder, and a direct hit. Shyam Chaudhary is out for duck now. Mauli in trouble in first over. 2 big wicket has gone now. 6 for the loss of 2 wicket. New batsman in Saqib Khan. Six for the loss of 2 wickets.
माउली स्पोर्ट. ये जो वेलकम जयराम पाटील, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. This time put away nicely, beautifully played. 4 runs. So his score moves up to 10 for the loss of 2 wickets. Mauli Sport. Man out Ghiyasuddin Sheikh, then Sham Chaudhary in form of run out. Raja Gulvi. So far claim 1 wicket, 1 batsman gets run out. Ball this time try to drive in front of the wicket. Ball is travelling to Gali. 2 of the bat. 1 to total now. 11 for the loss of 2 wicket. तेरे को लग नहीं रहा है क्या आवाज? 11 for the loss of 2 wickets. Raja Gulvi turn from VIP end, facing him batsman Saqib Khan. Goes to Saqib, hits in the air, missed time stroke, but just in front of short covers, and with the stroke Saqib Khan gets 1. That marks end of the first over. His score is 12. एक ओवर की समाप्ति 12 रन, 4 रन पेनल्टी के जोड़ रहे हम दोनों कैप्टन, इस बात को सुन ले. एक ओवर की समाप्ति पे रन बने 16. देखना है कि गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है. एक ओवर कुल मिला के रन बने 16, विकेटें गिरी है 2. अंपायर मैच को रोकना है. बॉलिंग को कौन है? पहला ओवर राजा गुलवी कर चुके हैं. वो तो अच्छा है कि हम आपको याद दे रहे हैं, वरना आगे तो भारत का सुपर से ऊपर शो है. बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के. ये रहता है कि टीम जब समय पे नहीं पहुंचती या पूरे खिलाड़ी नहीं रहते हैं तो दिमाग भी नहीं चलता है. पॉनियर के कैप्टन और जयदुर्गा बी के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए आना है. गेंदबाजी में अब साहिल शेख को बुलाया गया है. सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन साकिब खान. फील्ड की जमावट, दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले. 6 ओवर का ये सेमीफाइनल है. मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर है, कवर पॉइंट है, बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट थर्मैन है. इस मरतबा छोड़ दिया, वाइड से शुरुआत की साहिल ने.
1 रन से 17 पे पहुंचा है मौली स्पोर्ट्स का स्कोर। साहिल शेख अच्छी गेंद खोल के रख दिया वहां पर। देखिए बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है, लेकिन अंपायर को कोई भी इंस्ट्रक्शन ना दे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। और भिवंडी की क्रिकेट की वैसे भी अलग शान है पूरे दुनिया में। साहिल शेख साकिब को फिर बीट किया, लेकिन इस मरतबा वाइड। 1 रन स्कोर में आता हुआ 18 रन, 2 विकेटें गिरी है। साहिल शेख राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए, साकिब को खराब शॉट, विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। कहीं भी साकिब खान गेंदों को पढ़ नहीं रहे। येस आतापर्यंत 2 निर्धाव चेंडू खेळलाय साकिब। आपण पाहतो मिकी पाटील भरपूर मेहनत या स्पर्धेमागे त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते। आतिश पाटील यांच्या माध्यमातून विशेष आभार असतील। साहिल शेख साकिब खान के लिए इस मरतबा सीधा ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से डाउन द ग्राउंड, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से 5 पे पहुंचे साकिब खान। कुल स्कोर मौली स्पोर्ट्स का 22 पे पहुंचा है। साहिल शेख गोरसई एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे साकिब खान। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। ओ बढ़िया गेंद, फिर बीट किया। काफी कठिनाइयों में साकिब खान, हालांकि एक चौका जरूर जा रहा है, लेकिन साहिल शेख ने अच्छी परीक्षा ली है। 22 रन, गैसुद्दीन 6 रन बनाकर और श्याम चौधरी 0 पे आउट हुए। धीमी गेंद स्वीप किया, फील्डर है पीछे, लेकिन गेंद उन तक कैरी नहीं हुई। उनका थ्रो पहुंचा डीप से, 2 रन बना लिए बैट्समैन साकिब खान ने। तो 24 रन पे पहुंचा स्कोर मौली स्पोर्ट्स का। साहिल शेख ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, 4 रन। दो ओवर की समाप्ति, मैंडेटरी पावर प्ले में 28 रन आए 2 विकेटों के नुकसान पे। क्या कहेंगे संदेश? 28 धावा जरूर आल्यात, मात्र त्या मोबदल्यात 2 महत्वपूर्ण गडी बाद झाल्यात, एक जयसुद्दीन आणि त्यानंतर श्याम चौधरी। पॉइनियर के कैप्टन और जयदुर्गा बी के कैप्टन दोनों को रिपोर्ट करना है। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मातोश्री कप का। अट्ठाईस रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय टेटे सागर के लिए उछाल दिया, फील्डर मौजूद है,
लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से जाती हुई 6 रन। स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला हुआ स्ट्रोक सागर का। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। देखिए संदेश वकारे, आधा अधूरा प्यार हो, आधी अधूरी टीम हो, आधा अधूरा शॉट हो या आधा अधूरा ज्ञान हो, सब नुकसान देता है। सागर ने 11 पे पहुंचे और कुल 34 पे पहुंचा है स्कोर। वार भी अक्षय टेटे पे किया है। अक्षय टेटे सागर के लिए राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा इन कटर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद कट के अंदर की जानिब आई थी, बल्ले को छूने बाई का इशारा। अच्छी वापसी अक्षय टेटे की। स्कोर 35 पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर। साकिब खान 3 डॉट गेंदे खेल चुके हैं, 2 चौके लगाए हैं, 11 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय टेटे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए सामना करेंगे साकिब खान। इस मर्तबा बोल्ड कर दिया राउंड लेग्स, मिडल स्टंप उनका उखाड़ दिया। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अक्षय टेटे। काफी स्ट्रगल कर रहे थे साकिब खान, आखिरकार आउट होके गए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं एवन पवन अपने घरेलू मैदान पर। और क्या 2 शॉट खेले थे उन्होंने आरएस कप में। तर दरम्यान या ठिकाणी यस सिद्दीक बाबे सर शुभ आगमन होतंय आमचे बॉल पॉन सर अरुण पाटील, वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। बॉटम एंड का इनसे अच्छा इस्तेमाल टेनिस क्रिकेट भिवंडी में कोई भी नहीं करता है। उसके बाद प्रीतेश पाटिल है, उमर खान है, साहिल शेख है, कई नाम है जो बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एवन पवन भिवंडी प्रीमियर लीग का सबसे लंबा सिक्सर भी उन्होंने लगाया था। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। चेतन मौजूद थे वहां पर। खाता खुला पवन का। कुल स्कोर 36 रन, तीसरा ओवर चलता हुआ। अगला टॉस पॉइनियर बनाम जय दुर्गा भी। यहां से ठीक हम आपको भारत के सुपर से ऊपर शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2021 में लिए चलेंगे। इस मर्तबा धीमी गेंद, इंतजार किया और वार किया। 6 रन। शॉर्ट आर्म पुल, गेंद को आने दिया था, इंतजार किया और वार किया। हरकत में बरकत है कहते हैं। ये देखिए धीमी गेंद थी, आने दिया था, लेट खेले लेकिन ग्रेट खेले। स्कोर इस वक्त 42 पे पहुंचा है। रन बहुत तेजी से आ रहे हैं। खिजर रईस वहां पे काफी नाराज हैं क्योंकि अक्षय टेटे बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल पॉइनियर बनाम जय दुर्गा बी। कौन बनेगा मातोश्री कप का विजेता? पिछले साल इस कप को जीता था युतिका स्पोर्ट सोनाले ने। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, आंखों के नीचे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 1 रन आता हुआ। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 43 और बचे हुए 3 ओवर में क्या होता है कि आइए सुनते हैं। अब वो आवाज भिवंडी की बन चुके हैं संदेश वकारे। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर।
तीन षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 43 धावा झाल्यात. मात्र अजूनही तीन षटकाचा खेळ बाकी आहे. भरपूर चांगली धावसंख्या माऊली स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी का स्वीकारली होती याचं उदाहरण आणि त्याचं प्रत्युत्तर मात्र पहिल्या तीन षटकामध्ये जरूर दिलंय माऊली स्पोर्ट्स संघाने. तर आता मात्र षटक क्रमांकात 4था आहे. गोलंदाज चेतन पाटील येतोय. पाहूया चेतन कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल, कारण चेतनचे भरपूर पाठीराखे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. समोर फलंदाज सागर. षटकातील पहिला बॉल. गोलंदाज चेतन पाटील गोलंदाजी मार्कवर. पहिलाच बॉल दिशा चुकीची आहे. वाईड बॉल. अवांतर धाव मिळेल. षटकाची सुरुवात वाईड बॉलने झाली आहे. पहिलाच बॉल वाईड बॉल पाहायला मिळाला आहे. अवांतर धाव खर्च केली आहे. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेस हा बॉल ऑन साइडला भिडकवलाय. निघून जाईल सीमारेषा पार. चौकार. यावेळेस हा बॉल मिस टाइम झालाय. चेंडू हवेत. गोलंदाजाच्या माध्यमातून प्रयत्न जरूर झाले, मात्र चेंडू पासून दूर होता चेतन. त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्या. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकते. माऊली स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून 50 कंप्लीट. 50 धावा झाल्यात. षटक क्रमांक 4 आपण पाहतोय. चेतन पाटीलच्या माध्यमातून. यावेळेस बॉल ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. यस इज गॉन. फलंदाज बाद. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेस रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये हवा तसा संपर्क नाही आहे. जोरदार अपील जरूर झाली होती त्या ठिकाणी. चेंडू पायावर आदळला होता. A1 पवन समोर आहे. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा चेतन. यावेळेस हा बॉल फुल टॉस होता. काव कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. धाव संख्या 51. 51 धावा धावफलकावर झाल्यात. चेतनच्या माध्यमातून हे षटक आपण पाहतोय. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेस हा बॉल भिडकावून दिलाय. अक्षय मडवीचा अंदाज. चेंडू सीमारेषा बाहेर. षटकार.
येस घुटना टेक सिक्सर देख 57 धावा धावफलकावर 4 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. मात्र यानंतर अजूनही 2 षटकाचा खेळ बाकी आहे. या स्पर्धेतील पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय. राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स विपक्ष माऊली स्पोर्ट टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी करतोय. भरपूर चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पहिल्या 4 षटकामध्ये तब्बल 57 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात. मॅच कडे बोलूया आपण. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल फुलटॉस आहे. बिडकावून दिलाय सीमारेषे बाहेर हा षटकार. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस देखील फुल टॉस बॉल आणि रिझल्ट देखील सेम. षटकार आहे आणि त्याला जर तुम्ही या प्रकारचे चेंडू आत आलाल तर परिणाम मात्र समोरच आहेत. बॅक टू बॅक 2 फुलटॉस बॉल आणि बॅक टू बॅक 2 फुलटॉस बॉलवर 2 षटकार आल्यात त्याच्या बॅट मधून. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेसचा बॉल डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय. वाईट बॉल, अवांतर धाव मिळेल. धाव संख्या 70. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस देखील फुल टॉस बॉल होता. ऑफ साइडला कार्पेटच्या सानी जातोय. वाईड ऑफ लॉंग ऑफ, क्षेत्ररक्षण खराब झालंय आणि चेंडू निघून गेलाय सीमारेषे बाहेर. हा चौकार. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेसचा बॉल उडवलाय. हवेमध्ये आहे. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतात मात्र चेंडूपासून दूर आहेत. जोपर्यंत बॅकअप झाला त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 76 धावा झाल्यात. एक मोठ्या लक्ष्याकडे वळतोय या मावळी स्पोर्ट संघ. यावेळेसचा बॉल वाईड बॉल, यावेळेसचा बॉल पडल्यानंतर खाली राहतोय. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय. बेट केलंय त्या ठिकाणी एवन पवनला. अक्षय तिर्डीच्या माध्यमातून एक महागडे षटक आपण पाहतोय. यावेळेस हेलिकॉप्टर उडवलाय. येस, अजून एक षटकार.
83 तब्बल 83 धावा धावफलकावर झाल्यात. तर 2 षटकामध्ये तब्बल 40 धावा खर्च केल्या अक्षय तेटे या गोलंदाजाने. एक गडी बाद जरूर केला होता त्याने, मात्र भरपूर धावा खर्च केल्यात, तब्बल 40 धावा खर्च केल्यात. तर आता मात्र चेतनला कंटिन्यू ठेवलाय. शेवटचं षटक फेकण्यासाठी चेतन पाडेल आलाय. या आधीच्या षटकामध्ये 14 धावा खर्च केल्या होत्या चेतनने, एक गडी बाद केला होता. मात्र यावेळेस हे जे षटक आहे अंतिम षटक आहे. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल अप्रतिम अलौकिक चेंडू सीमारेषे बाहेर. हा षटकार अक्षय मडवी देखील भरपूर चांगली फलंदाजी करतोय. या षटकाची सुरुवात पहिल्याच बॉलवर हा षटकार आलाय. षटकातील पुढील बॉल यावेळेस ऑन साइडला टोलवलाय. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक, काही एक नाही, नाही नॉट 90 धावा धावफलकावर झाल्यात. मात्र अजूनही 4 बॉल्स बाकी आहेत. पाहूया कुठपर्यंत मजल मारेल माऊली स्पोर्ट संघ. यावेळेसचा बॉल जोरदार अपेल, पंच मात्र सहमत नाहीयेत. लेग स्टिक सोडून बाहेर आताला होता बॉल. निर्धाव जातोय, कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. षटकातील पुढील बॉल यावेळेस देखील बीट केलं जातंय. अजून एक चांगला बॉल पाहायला मिळतोय. चेतन पाटीलच्या माध्यमातून पहिल्या बॉलवर षटकार आला. त्यानंतर मात्र उर्वरित 3 बॉल्स मध्ये फक्त एकच रन खर्च केली आहे त्या ठिकाणी चेतन पाटीलने. अजूनही 2 बॉल्स बाकी आहेत. यावेळेसचा बॉल पुढे ठेवला होता, कार्पेटच्या साने जातोय. लॉंगॉन सीमारेषेलगत वरनं क्षेत्ररक्षक येत आहेत. एक धाव कंप्लीट झाली. 91 धावा झाल्यात. चेतन पाटील गोरसे विलेज चौकाकडनं षटकातील शेवटचा बॉल घेऊन वळतोय. यावेळेसचा बॉल एसटी उडावली त्या ठिकाणी. फलंदाज बाद अक्षय आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक 6 या ठिकाणी कंप्लीट झाला. 6 षटकाची समाप्ती. धावा धावफलकावर आहेत 91. 91 धावा, 92 धावांचं लक्ष आहे. या लक्ष्याचा बाटला कशा प्रकारे केला जाईल आपण पाहणार आहोतच. मात्र त्या दरम्यान टॉस कडे वळूया. या स्पर्धेतील दुसरा सेमीफायनलचा सामना जयदुर्गा बी विपक्ष पॉइंटर स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान. तर टॉस कडे आपण वळूया. व्यासपीठावर अरुणजी पाटील आहेत, त्यांच्या आपण टॉस करणार आहोत. शैलेश पाटील ना सज्जन पाटील आपण देखील या. अरुण पाटील सामाजिक कार्यकर्ता यांच्या माध्यमातून बॉल स्पॉन्सर झालेत या टुर्नामेंटला. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस उडवतोय. टॉस उडवला जातोय. टॉस जिंकला या ठिकाणी जयदुर्गा बी संघाने. मैदानाच्या आतमध्ये सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सो आपण फक्त डिसिजन विचारतोय. क्षेत्ररक्षण. धन्यवाद. दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. मैदानाच्या आतमध्ये सामन्याला सुरुवात करायची आहे. सो वेल कमी आहे. पुन्हा एकदा आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये वळूया. .91 91 धावा झाल्यात. 92 धावांचं एक विशाल लक्ष्य या ठिकाणी उभं केलंय विजयासाठी.
तर दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन होतंय सुदामजी पाटील त्यांच्या समवेत प्रशांतजी पाटील. वेलकम. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. या चकडा प्रेमी या ठिकाणी आपण पाहतोय सुदाम पाटील त्यांच्या समवेत प्रशांतजी पाटील अरुणजी पाटील व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. तर मॅच कडे बोलूया. सामन्याला सुरुवात करायची आहे. तर दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन होतोय निलमजी नाईक. वेलकम. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं हार्दिक स्वागत आहे. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर या. यस त्यांच्या समवेत सोमेश्वर धुमाल देखील आहेत. वेलकम. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर व्यासपीठावर सुदामजी पाटील आपण पाहतोय त्यांची आज अॅनिव्हर्सरी आहे. बुवा पाटील आकाश पाटील यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा आल्यात त्यांना व त्याचबरोबर माऊली माऊली स्पोर्ट आणि मातोश्री चषकासाठी देखील. तर आता मात्र सामन्याकडे वळूया आपण. साहिल आणि अरकम ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सलामीवीर आहेत. तब्बल 92 धावा चेस करायच्या आहेत. सेफ गोलंदाजी मार्कवर येतोय. सेफ शेखने मात्र भरपूर आकर्षित केलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये. आपण सामन्याला सुरुवात करूया. गेम स्टार्ट. पहिलाच बॉल फुल टॉस आहे. भिडकावून दिलाय 6 धावांसाठी षटकार. पहिल्याच बॉल वर हा षटकार आलाय.
सैफ शेख पहिलाच बॉल फुल टॉस होता. षटकार आलाय त्या बॉलवर. पुन्हा एकदा बोलतोय यावेळेला चेंडूला पुढे ठेवलाय. एक चौटी धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट होत आहे. लेग बायच्या स्वरूपात धाव आली. धावसंख्या 7. तर यावेळेस डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय रक्कम. षटकातील पुढील बॉल. या बॉलवर प्रहारचा लाईव्ह फटका चांगला आहे, निघून जाईल. 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. हा चौकार. डबल 1. 11 धावा धावफलकावर झाल्यात. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेस बॉल तालमेलची कमतरता. मैदान सोडावं लागेल त्या ठिकाणी. फलंदाज बाद धावचीच्या स्वरूपात. तर त्या दरम्यान या संपूर्ण आयोजन नियोजनासाठी त्याचबरोबर सुदाम पाटील तुमच्यासाठी नक्कीच भिन्नवर्ण शुभेच्छा आल्या तुमच्या अॅनिव्हर्सरी साठी. भावेश भोईर आणि भूषण भोईर यांच्या माध्यमातून. नवीन फलंदाज खिजर मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. चाविंद्रा स्पोर्ट चाविंद्र आणि आतिश पाटील यांच्या माध्यमातून देखील हॅपी अॅनिव्हर्सरी केलं जात आहे. सुदाम पाटील तुम्हाला भरपूर साऱ्या शुभेच्छा असतील. षटकातील पुढील बॉल. यावेळेसचा बॉल उडवलाय, निघून जाईल सीमारेषा पार. गुड शॉट. षटकार. यावेळेसचा बॉल आडवा बॅटने खेळून काढलाय अक्षय मडवी. आउटफील्ड मध्ये आपण पाहतोय. त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट झाल्या. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकेल. 10 धावफलकर पाहायला मिळत आहेत. 19 धावा झाल्यात. पहिला षटक कंप्लीट झाला. 10 धावफलकर आहेत 19. आता मात्र जय आलाय. षटकातील पहिला बॉल. यावेळेसचा बॉल अप्रतिम फटका. चेंडू निघून जाईल सीमारेषे बाहेर.
षटकार. यावेळेस अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. षटकाची सुरुवात 6 धावांच्या मदतीने झाली आहे. षटकार आलाय. 6 धावफलक मात्र पुढे सरकेल. 25 धावा झाल्यात. जरूर या प्रकारचे फटके खेळावे लागतील कारण एक मोठं लक्ष आहे समोर. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी तुम्हाला या प्रकारचे फटके जरूर खेळावे लागतील. यावेळेस देखील प्रहार झालाय. अप्रतिम अलौकिक फटका. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर द लाईन. हा चौकार. तर 4 धावफलक पुढे सरकलाय. 10 धावफलकावर झाल्या आहेत. 29 29 धावा झाल्यात. यस सुदामजी पाटील तुम्हाला लग्न वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या जातात तुमच्या अक्काकडून संगीता बालाराम भोईर यांच्या माध्यमातून. दरम्यान बालाराम मोतीराम पाटील यांचं शुभ आगमन होतंय. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. व्यासपीठावर काही मान्यवर आहेत त्यांच्या स्वागत सत्काराकडे आपण वळतोय. नीलम नाईक व्यासपीठावर आहेत. आकाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. यस त्यानंतर सोमेश्वर धुमाल आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. जे इंजिनियर आहेत त्यांचं देखील स्वागत सत्कार आपण या ठिकाणी करूया. आकाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते मायेची उपदार श्वाल, प्रेमाचं प्रतीक फुलगुच्छ व या स्पर्धेची गोड आठवण मोमेंटो सन्मान चिन्ह देऊन याचाची स्वागत सत्कार या ठिकाणी केला जातोय. त्यानंतर व्यासपीठावर सुदामजी पाटील आहेत. प्रथम कुमार चाविंद्रा 40+ संघाचे सर्व ज्यांचा आज लग्न वाढदिवस आहे स्वागत सत्कार केला जातोय आकाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आमचे बॉल स्पॉन्सर अरुण पाटील, त्यांचे देखील स्वागत सत्कार केला जाईल. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून बॉल स्पॉन्सर झाल्यात आकाश पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण स्वागत सत्कार करून घेतोय. स्वागत सत्कार आपण पाहतोय अरुण पाटील यांचा या ठिकाणी केला जातोय. त्यानंतर सचिन पाटील व्यासपीठावर आहेत त्यांचं देखील स्वागत सत्कार आपण करूया. व्यासपीठावर चावेंद्रगावचे उद्योजक बालारामजी पाटील आहेत त्यांचे देखील सत्कार आपण या ठिकाणी करूया. 38 धावा धावफलकावर झाल्यात. षटक क्रमांक दुसरं या ठिकाणी कंप्लीट झालंय. 2 षटकाची समाप्ती 38 धावा धावफलकावर आहेत. 4 षटकामध्ये विजयासाठी 54 धावांची आवश्यकता आहे. तर ज्या प्रकारची धावसंख्या उभारली गेली माऊली स्पोर्ट्स संघाच्या माध्यमातून आणि त्याचा मात्र चोख प्रत्युत्तर या ठिकाणी दिलंय.
षटक क्रमांक 30 यासीर येतोय. मात्र त्या दरम्यान या स्पर्धेचा जर विचार केला तर अपाट मेहनत अपाट कष्ट राज पाटील यांच्या माध्यमातून देखील आपण पाहतोय. अडतीस धावा धावफलकावर आहेत. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर टिट फॉर टॅट जसं तसं प्रत्युत्तर या ठिकाणी दिलं जात आहे. कारण ज्या प्रकारची धावसंख्या उभारली गेली माऊली स्पोर्ट संघाच्या माध्यमातून 92 धावा टोकायच्या आहेत. यावेळेस हा बॉल आपण पाहतोय लक फॅक्टर खिजरच्या बाजूने. या साऊट फील्ड भरपूर फास्ट आहे. चेंडू निघून गेलाय सीमारेषा पार. हा चौकार. चार ने धावसंख्या पुढे सरकली. धावा धावफलकावर आपण पाहतोय 42 धावा झाल्यात. 23 बॉल्स मध्ये 50 रन्स काढायचे आहेत. अजूनही 23 चेंडू 50 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज बोलतोय यासीर. यावेळेस हा बॉल प्रहार झालाय. चेंडू हवेत आहे. निघून जाईल सीमारेषा पार. हा षटकार. अप्रतिम फटकेबाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. 6 ने धावफलक पुढे सरकलंय. धावा धावफलकावर 48 पाहायला मिळत आहेत. और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के जो बल्लेबाज है रनों का डेवलप करते हुए, और उन्होंने कह दिया है कि टीम चाहे आधी अधूरी रहे मैच पूरा रहेगा. स्कोर इस वक्त उछलता हुआ पहुंचा है. 48 रनों पे तीसरा ओवर है. अगर ये स्कोर को चेस कर लेती है तो ये नया कीर्तिमान हो जाएगा. इससे पहले पाइनियर और एसपी के नाम है. इस मर्तबा इनसाइड आउट खेला है. गेंद डीप कवर में गई है. दूसरे की कॉल है और 2 रन पूरे करते हुए 50 रन पूरे हुए हैं. व्हाट अ मैच. एक विकेट गिरा. अरकम 4 पे आउट हुए थे. उसके बाद साहिल शेख और खिजर रईस की कमाल की बल्लेबाजी. खिजर इस वक्त 21 पे खेल रहे हैं जबकि साहिल शेख ने बना रखे हैं 23 रन. ये पार्टनरशिप कितनी की हुई है अभी तक? 41 रनों की. सुई चीट करने की कोशिश. सवाल पूछा वहां पर. 1 रन पूरा हुआ. दूसरे के लिए मना किया वहां पर. 1 रन से 51 रन लेग बाय. क्या पलटवार किया है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के बल्लेबाजों ने. उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन है और कौन नहीं. जो हाजिर वही वजीर. लंबा बैटिंग लाइनअप अभी भी आना बाकी है. गैसुद्दीन शेख काफी नाराज लग रहे हैं जिस तरह से रन बन रहे हैं. अगला मुकाबला जयदुर्गा बी ने टॉस जीता है सेमीफाइनल में और पाइनियर को दावत दी है बल्लेबाजी की. कमाल का मुकाबला चल रहा है. मातोश्री कप में रंग भरता हुआ सेमीफाइनल 6 ओवर का. तीसरे ओवर की 2 गेंदें बची है और 1 गेंद बची है और कहीं ना कहीं कठिनाइयों में नजर आ रही है. 2 गेंदें बची है. देखिए गैसुद्दीन शेख कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर. इट हैज बीन अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिप्लाई फ्रॉम तारिक रईस फैम टीम रईस बिल्डर एंड डेवलपर. तंजीम गोरेकर हमारे बीच में. आपका स्वागत है. इसे कहते हैं आर पार की लड़ाई. फील्डिंग में तब्दीली की गई है. फाइन लेग को अब पीछे भेजा गया है. यासिर शेख भी इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं. अब तक 13 रन दे चुके हैं जबकि पहले ओवर में सैफ शेख 19 रन दिए और जय तुरे को भी 19 रन दे डाले. रईस बिल्डर एंड डेवलपर एक कप की रनर्स टीम है और ये तीसरा सेमीफाइनल इस सीजन में वो खेल रही है.
यासिर शेख साहिल के लिए बल्ले के फेस को खोला, स्टीयर किया शरीर के करीब 1 रन। शॉट्स कितने अच्छे टाइम किए जा रहे हैं, बिल्कुल गेंद के ऊपर आके खेला जा रहा है। 1 रन से 52 पे पहुंचा है स्कोर। 40 रनों की जरूरत है 3.1 ओवर में, जबकि विकेटें देखे तो 9 हाथ में है और आने वाले बल्लेबाजों में लंबा बैटिंग लाइनअप है। यस, अक्षय ठेटे हैं, राजा गुलवी हैं, चेतन पाटिल है, यासिर शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, अरकम को स्लाइस किया, पहले बाउंस पर डायरेक्ट थ्रो लेकिन नॉट आउट। बेनिफिट ऑफ डाउट इन फेवर ऑफ बैट्समैन देते हुए पहुंच गए अपने क्रीज में। स्लाइस किया था वहां पर, पहले बाउंस पे गेंद गली में गई थी। खिजर रईस इस सीजन में जो अमित मेमोरियल कप हुआ था उसके बेस्ट बैट्समैन रहे थे। खिजर रईस अच्छे टच में है और ओवर समाप्त होते हुए 3, कुल स्कोर है 53, ओवर बचे 3 और रन चाहिए 39। अगर रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने ये रन चेस किए तो इस सीजन का हाईएस्ट चेसिंग रहेगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड पायनियर और एसपी दापोटे के नाम है। तीन ओवर में 39 रन चाहिए। गर्म धूप में गर्म मुकाबला आप देख रहे हैं, मौली स्पोर्ट बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाया गया। गेंदबाजी में साकिब खान को बुलाया गया है। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी जो वरगर के लेट विनोद दादा पाटिल चषक में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, 11 विकेटें हासिल की थी। सामना करेंगे खिजर रईस। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। साकिब खान इस मरतबा हेलीकॉप्टर ड्राइव, गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ गई है। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से 54 पे पहुंचा है स्कोर। दोनों बल्लेबाज बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और मूड को बना दिया है दोपहर के। वैसे भी रईस बिल्डर एंड डेवलपर बहुत ही झंझारू टीम है। साकिब खान साहिल शेख के लिए इस मरतबा अच्छी गेंद, वापस बॉलर बैक ड्राइव किया, कोई रन नहीं। फॉलो करके गेंद की थी साकिब ने। यह देखा कि बैट्समैन काफी शफल खेल रहे हैं। साकिब खान इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग टर्न कर दिया। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 3 गेंदों में केवल 2 रन दिए और आस्किंग रन रेट अब बढ़ता हुआ। स्कोर 55 पे जा पहुंचा है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई हम देख रहे हैं। कहीं भी दबाव नहीं लिया अभी तक। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए गैसुद्दीन अभी थोड़ा सा ज्यादा खफा लग रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक हो गए हैं। खिजर को बोल्ड कर दिया राउंड द लेग्स,
स्लिप करती हुई गेंद निकल गई बॉल के रूप में। मूड पे है क्या तेरे? पहले कुल मिलाकर 23 रन बनाए। बहुत बढ़िया इनिंग खेली। नए बैट्समैन राजा गुलवी के हैं बल्लेबाजी को, जो लेट विनोद दाता पाटिल चषक वडगर के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। राजा गुलवी सामना कर रहे हैं साकिब खान का। साकिब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, राजा को अगेंस्ट द टर्न खेला, गेंद नो मैंस लैंड में गई है। 1 रन बनाए जब तक कि नितिन गेंद को उठाते। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं साकिब खान, रनों पे रोक लगा दी है। अब साहिल सामना कर रहे हैं साकिब खान का। 5 गेंदों में केवल 3 रन और 1 विकेट। इट हैज बीन अ कंट्रोल बॉलिंग फ्रॉम साकिब खान, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी। साकिब, ओ बढ़िया गेंद, आउट, एलबीडब्ल्यू। साकिब खान ने 2 मंजे हुए बल्लेबाजों को एक ही ओवर में आउट करके फिर बता दिया है कि वो गोल्डन आर्म्स क्यों है। ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 56। अब ओवर बचे 2 और यहां से कितने रन चाहिए? 36 रन चाहिए। काम अभी मुश्किल होता हुआ, क्योंकि साकिब खान का कमाल का ओवर जहां सिर्फ 3 रन और 2 विकेट, और दोनों सेट बैट्समैन को आउट किया साकिब खान ने। गयासुद्दीन शेख इस ओवर से पहले काफी खफा रहे थे। गेंदबाजी में अब यासिर शेख को कंटिन्यू रखा गया है। 2 ओवर 36 रन। सामना करने जा रहे हैं बैट्समैन राजा गुलवी, नॉन स्ट्राइक पर है अक्षय ठेटे। यासिर शेख, तेज हवाएं बह रही है। राजा गुलवी के लिए इस मरतबा अच्छा ड्राइव वी की शक्ल में 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 11 गेंदे 35 रन। अगर रईस बिल्डर एंड डेवलपर इस मुकाबले को सेमीफाइनल को जीतती है तो इस सीजन में दूसरी मर्तबा BC4 सिटी क्रिकेट में फाइनल में पहुंचेंगी, और मौली जीतती है तो चौथी मर्तबा। अगला मुकाबला पायनियर। यहां से ठीक हम भारत के सुपर से ऊपर शो की तरफ जाएंगे। आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 20-21, 14 से 28 मार्च परशुराम टावरे स्टेडियम में भारत का सुपर से ऊपर शो अल्ताफ बाली प्रेजेंट, पायनियर ऑर्गेनाइज। इस मरतबा खड़े खड़े भेज दिए, लोगों पे 6 रन। अक्षय ठेटे का शॉट है, ये निकल गया तो फिर रुकता नहीं है। क्या शॉट खेला है अक्षय ठेटे ने, स्टैंड एंड डिलीवर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ
63 पे पहुंचा है। अब 10 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 29। जितनी तेज गेंद की थी यासिर शेख ने उतना तेज शॉट। यासिर शेख फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलर, ठेठे को पंच किया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद का पीछा कर रहे हैं, बाउंड्री के अंदर रोका है, 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। ओवर थ्रो हुआ है, 3 रन बनाए हैं। 3 रन से 66 पे पहुंचा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर का स्कोर। अब मैच थोड़ा करीब होता हुआ, 9 गेंदे और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 26। दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जिनके पास क्षमता है ऊंचे स्ट्रोक्स लगाने की। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए यासिर शेख, बढ़िया गेंद, अधिक उछाल, बल्ले के करीब से गेंद जाती हुई विकेट कीपर के पास। रफ्तार बहुत अच्छी थी, पिचअप बहुत अच्छा था, गेंद बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करते हुए पहुंची विकेट कीपर के पास। 8-26 का इक्वेशन। इस मरतबा बहुत ही तेज ड्राइव मिड विकेट पर, 1 रन। यॉक कराने की कोशिश की थी बैट्समैन को। 7 गेंदों में 25 रन चाहिए, लेकिन रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने जवाब बहुत ही भारी दिया अभी तक। यासिर शेख अक्षय ठेठे के लिए इस मरतबा स्ट्रोक किया है, गेंद मिड विकेट पर, और देखना है वहां पे वॉलेंटियर्स क्या इशारा कर रहे हैं। ऑनफील्ड अंपायर क्या निर्णय देते हैं। 6 रन। आइए देखते हैं। ऑनफील्ड अंपायर के डिसीजन पे हम कमेंट्री कर रहे हैं, ना कि अपनी तरफ से। ऑनफील्ड अंपायर ने 6 रन का सिग्नल दे दिया है क्योंकि उनके वॉलेंटियर्स वहां पे थे। ऑनफील्ड अंपायर के डिसीजन पे ऑनफील्ड अंपायर, यस, ऑनफील्ड अंपायर का कहना है कि उनके वॉलेंटियर, आप ऑनफील्ड अंपायर मैदान में आए। यस, हमारे बीच BC4 के चेयरपर्सन गो ईस्ट और वेस्ट अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। अल्ताफ बाली सर आ चुके, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम। क्लियर है ना भाई, उधर
हमारे अंपायर्स अपना निर्णय बता दें। छह रन, तो कुल स्कोर उछल कर पहुंचा है 73 रन। 19 रन चाहिए आखिरी ओवर में मैच को जीतने के लिए। अक्षय ठेटे कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में 15 रन बनाए अक्षय ठेटे ने। अल्ताफ वाली सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। आपका हार्दिक स्वागत है मातोश्री कप में। BC4 चेयरपर्सन आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो, सुपर से ऊपर ऑर्गेनाइज से देखना ना भूलिए। बाली ट्रॉफी 2021 14 से 28 मार्च 4 फॉर्मेट में, ये भी भारत में एक रिकॉर्ड रहेगा क्योंकि ओपन फॉर्मेट के साथ है। साकिब खान, ओ बढ़िया गेंद, टो क्रशर, आउट LBW। अगर मैच में कोई फर्क लग रहा है संदेश वकारे तो साकिब खान की गेंदबाजी का। 7 गेंदों में अब तक उन्होंने केवल 3 रन दिए और 3 विकेटें लिए। इज अ रियल, इसीलिए मैं उन्हें गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी कह रहा हूं। व्हाट अ बॉलिंग, ये देखिए स्विंगिंग यॉर्कर थी, टो क्रशर, राजा गुलवी की टो से टकराई, आउट हो गए। 19 रन 5 गेंदों पर नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। अजय के सामने विजय के लिए 5-19 का इक्वेशन है। साकिब खान इस मर्तबा फिर से खेलने की कोशिश, रन नहीं दिया वहां पर, डॉट गेंद। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा। नो आर्गुमेंट्स प्लीज, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। 4 गेंदों में अब 19 रन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं साकिब खान। 8 गेंदे 3 रन और 3 विकेट, 1.2 ओवर्स। साकिब खान इस मर्तबा बहुत दूर कर बैठे वाइट। 4 में अब 18 रन चाहिए, स्ट्राइक से अभी दूर है अक्षय ठेटे। 3 गेंदों पे 15 रन बनाए अक्षय ठेटे ने। साकिब फिर से वाइट, फिर से खराब गेंद। 4-17 का इक्वेशन। 2 गेंदें मानो बैट्समैन और गेंद के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग रखी थी साकिब खान ने। इस मर्तबा अपील, लेकिन अंपायर उससे सहमत नहीं। 1 रन आता हुआ। अब 3 गेंदों में 16 रन चाहिए। स्ट्राइक आया अक्षय ठेटे के पास, लेकिन रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने कमाल का जमकर मुकाबला किया। खीजर और साहिल शेख के आउट होने के बाद पलटवार किया था साकिब खान ने। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर, क्या शॉट खेला है, गैप में गेंद जा रही है, अब जाके रोका है उसे। और इस बीच 2 रन पूरे किए। हालांकि शॉट बहुत जबरदस्त खेलने की कोशिश की थी। अब 2 गेंदों में 2 गेंदों में कितने रन चाहिए? 14 रन। स्वीप किया है लेकिन रन नहीं लिया है। लेकिन वाकई में हालांकि टीम पूरी नहीं थी, लेकिन मुकाबला पूरा किया वहां पर रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने।
लगभग अब फाइनल में चौथी मर्तबा जाने की तैयारी मौली स्पोर्ट्स की। उछाल दिया हेलीकॉप्टर शॉट और देखना अंपायर का इशारा 6 रन, 7 रनों से मुकाबला हारी है, लेकिन जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रईस बिल्डर एंड डेवलपर का। जबरदस्त मुकाबला किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मौली स्पोर्ट, योगेश भुईर, नीलेश गुरु। 4 रन पेनल्टी के भी बहुत महंगे पड़े, क्योंकि 4 रन का जो पेनल्टी हुआ था रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। बहरहाल जो जीता वही सिकंदर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है एवन पवन। एवन पवन इज द मैन ऑफ द मैच। 27 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली। पवन इज द मैन ऑफ द मैच। हमारे बीच अशफाक